अभय चरणारविंद प्रदान स्वयं प्रपात जन्म कोटि कृष्ण बंदे नामाचार्य दास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तीसरा शिखर और श्लोक संख्या 20 है ना, 20। हरे कृष्ण। इत्थं ब्रजं भारतं एव वर्षं कालेन यावत् गत्वान् प्रभासं तावत् सासस है ना, ससास क्षिति चक्राम एक आतपत्राम अधीतेन पार्थः इथं वर्जान भारत एवं वर्षम् इथं भारतं वर्जान भारत एवं वर्षम् कालेन यावद् गतवान् प्रभासम् तावत् सास क्षितिमेकचक्राम् एकान्तपत्राम जितेन पार्थ इथं व्रजन् भारतमेव वर्षम् कालेन यावद् गतवान् प्रभासम् तवच्छसास क्षितिमेकचक्राम् एकान्तपत्राम जितेन पार्थः इथं व्रज भारतमेव वर्षम् कालेन यावत् गतवान् प्रभासम् तावत् सास क्षितिमेकचक्राम् एकान्तपत्राम जितेन पार्थ। इथं व्रजं भारतमेव वर्षम् कालेन यावत् गतवान् प्रभासम् एकान्तपत्रम् अजितेन प्रथम् इथं व्रजं भारतमेव वर्षम् कालेन यावत् गतवान् प्रभासम्
put more than 5,000 years ago, while Saint Vidura was traveling the earth as a pilgrim, India was known as Bharatavarsha, as it is known even today. The history of the world cannot give any systematic account for more than 3,000 years into the past, but before that, the whole world was under the flag and military strength of Maharaj Yudhishthira, who was the emperor of the world. At present, there are hundreds and thousands of flags flapping in the United Nations. But during the time of Vidura, there was, by the grace of Ajita, Lord Krishna, only one flag. The nations of the world are very eager to again have one state under one flag, but for this they must seek the favor of Lord Krishna, who alone can help us become one worldwide nation. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jansalkaya Tasmai Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Vayam Ishaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Padakulam Sri Guru Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Shayana Raghunathanvitam Tam Sajivam Savadvaitam Savadhutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Shagam Lalita Vishakhan Vindasya He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radha Vrindavan Smriti Vashvan Sri Pranami Hari Pri Panchakalpatru Veshtu Kripa Sindhu Bhe Vicha Patitanam Pavnibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshtarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. इथम ब्रजन भारतमेव वर्षम काले नियतगात्वान भाषम यच्छसासम क्षितिमेकम चक्राम एकांत पत्राम अजितेन पार्थः। तो विदुर जी का विशेषतया यहाँ पर जिज्ञासा हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम पर थे तो उनकी कृपा से भारतवर्ष में सुख शांति थी। So this is inquisitive or inquiry by Vidura that when Lord Krishna was personally present on this planet Earth, the whole planet was very joyful and happy. ऐसे तो उस समय भी बहुत सारे आतताई लोग थे, जैसे कि श्रीमद् भागवत में हमें उल्लेख मिलता है भगवान के स्वयं प्रकट होने से पहले से बहुत सारे बदमाश इत्यादि थे, कंस इत्यादि बहुत सारे, लेकिन भगवान ने सबों को जो है समन किया, मतलब मारपीट करके शांत कर दिए। So before Lord Krishna appeared, there were so many demons causing so much of tribulations to all the world, but when Krishna appeared, he killed all of the demons and established Dharma. तो विदुर जी उनको याद करते हैं कि पार्थ विशेषतया गीता में अर्जुन के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर प्रथा कुंती के पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर महाराज को भी यहाँ पे पार्थ बताया जा रहा है कि पार्थ मतलब युधिष्ठिर महाराज पूरे भारतवर्ष के या भूमंडल का एकमात्र सम्राट थे वो, उनका एकमात्र झंडा था पूरे विश्व पर। So here the word Parth, which also refers in Bhagavad Gita to Arjuna, but here specifically it refers to Maharaj Yudhishthira. And Maharaj Yudhishthira is referred to as the emperor of the world under
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भी लोग ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि पूरी विश्व जो है एक झंडा के नीचे रहे सुख शांति से। So Prabhupada mentions in the purport that even today everyone is desiring that everyone should be under one nation, one flag, living peacefully. लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है, भगवान की कृपा इसमें चाहिए। It's very difficult unless and until one has the kripa or mercy of Krishna. लेकिन विशेषतया यहाँ पर इथम वर्जान में वर्षम कालेन प्रभाषम माने भारतवर्ष का महिमा का विशेष यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत माने भारतवर्ष कितने पवित्र और कितने महान है। बोलिए। So here it mentions about Bharatvarsha, which is none other than India, and how India or Indian culture is so great. तो भारतवर्ष में विशेषतया विदुर जी के लिए आया है इस प्रसंग में कि विदुर जी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया कि हम भी कुछ लड़ाई झगड़ा इत्यादि करके हमारा भी अधिकार बनता है। उनके पास था अपना महल कि हम भी यहाँ पर रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब अपना चुपचाप गृह को त्याग करके माने तीर्थ करने के लिए निकल गए। Here we see that Vidur, although he was insulted by Duryodhana, he could have counteracted, but without doing so, he left his home and went on pilgrimage. विशेषतया महाराज श्री कल बता रहे थे कि विदुर जब अपना गृह त्याग किया हस्तिनापुर को, तो समस्त तीर्थों में जहाँ पर भगवान के बड़े सुंदर सुंदर देवालय मंदिर बने हुए हैं पवित्र नदी के तट पर, जैसे कि वृंदावन धाम है, विशेषतया अयोध्या जी है, वृंदावन में जमुना जी है, अयोध्या जी में सरजू जी है, और हमारे पंढरपुर में चंद्रभागा नदी पंढरीनाथ भगवान विराजमान है। तो इस तरह से कावेरी जी है, कावेरी के तट पर भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है जो रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे तीर्थों का यहाँ पे वर्णन है विशेषतया श्री, और मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। So it mentions about different holy places, especially there are a lot of holy places in India if you travel, and they are mostly situated along the banks of very pure rivers like Yamuna, there is Vrindavan, along the banks of Saryu, there is Ayodhya, and then Pandharpur near Chandrabhaga, and near Kaveri there is Ranganath. So all these beautiful holy places are situated throughout India. तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे मतलब पवित्र नदियां हैं और पवित्र देव स्थल है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि विदुर जैसे कि दिल्ली मतलब आज के वर्तमान हस्तिनापुर वहाँ पर थे, तो वहाँ से विदुर देव मतलब प्रभाषम आगतम प्रभास मतलब उनको कई वर्ष लगा था तीर्थाटन करने में, वो भी चल करके। तो अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने शुरू किया होगा विदुर जी ने हस्तिनापुर से, तो नेमी शरण में आए होंगे क्योंकि नेमी शरण के लेफ्ट में पड़ता है, और नेमी शरण से काशी है, बनारस है, अयोध्या है, जगन्नाथपुरी, बोलते जाओ प्रभु। So Vidur actually when he left for pilgrimage, he left on foot and he started from Hastinapur, which is currently known as Delhi. And from there he went to Kurukshetra. From Kurukshetra he went to Ayodhya. And then down to Jagannath Puri. इसके बाद ऐसे घूमते हुए विदुर महाराज जगन्नाथपुरी से चले गए, जैसे कि श्रीरंगम की तरफ जो रंगनाथ भगवान है, श्रीरंगम कन्याकुमारी, फिर उधर से लौटते हुए अनंत पद्मनाभ मतलब फिर भारत की परिक्रमा होती है ना, ऐसे मैंने आ रही बात इसमें। So from Jagannath Puri down south is Srirangam, and from Srirangam again started coming actually Kanyakumari, which is southernmost tip of India, and then he is coming up through वेंकटेश भगवान Balaji, which is Tirupati.
तिरुपति जी है। इसके बाद विदुर जी आए होंगे फिर से पंढरपुर, मतलब पंढरपुर महाप्रभु भी गए होंगे। Pandharpur, which is in Maharashtra, West India. इस तरह से विदुर जी घूमते फिरते फिर प्रवास, मतलब वहाँ से पूरे जैसे उत्तर भारत से स्टार्ट किए तो पूरब में, पूरब से दक्षिण में, दक्षिण से फिर पश्चिम की तरफ गुजरात, मतलब ये प्रवास क्षेत्र यहाँ पे आ जाते हैं। And Prabhas Kshetra, which mentions Dwarka, here, which is Dwarka, हाँ, नियर। near Dwarka. तो विदुर जी का विशेषतया विचार, मतलब हम सबों के लिए उदाहरण कि ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, भगवान के भक्तों के सानिध्य में रह करके तीर्थों का सेवन करना और उनकी कथा सुनना। So the special instruction here by Vidur is that having got the human form of life, we should not waste it, but instead associate with the devotees of the Lord by visiting different places, holy places. तो विशेषतया इतने सारे जो तीर्थ का जो भ्रमण करेगा, मतलब विजिट करेंगे, घूमेंगे, स्नान करेंगे, भगवत दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो वो व्यक्ति स्वतः जो पवित्र हो जाता है। Especially if somebody does this kind of pilgrimage, traveling throughout holy places, taking bath in the holy rivers and associating with the saintly persons, then definitely he will get purified. विशेषतया भारतवर्ष में ये सब सुविधा पर्याप्त उपलब्ध है। Especially in India, there is this particular facility for everyone. तो भारतवर्ष, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 5000 वर्ष पहले भारत का मतलब सब कुछ था, मैंने अपना नाम पहचान, लेकिन आज के विश्व इतिहास में कोई अमेरिका इत्यादि देश है तो 3000 से पहले का वो प्रमाण नहीं दे सकता कोई भी देश। It's like Prabhupada mentions here in the purport that mostly they track the history up to 3000 years, but here it mentions more than that, like 5000 years. लेकिन श्रीमद् भागवत से हमें आगे भारत विषय में और जानकारी मिलता है कि ये भारतवर्ष जो है, ये जैसे कि हमारा ये धर्म सनातन धर्म है, तो ऐसे ही ये भारतवर्ष जो नाम है ये सनातन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जो 21 नंबर श्लोक है 19 अध्याय का, इसमें जो देवता लोग हैं वो लोग उनकी महिमा का गान कर रहे हैं भारतवर्ष के। This word Bharatvarsha, it appears also in the 5th canto, 19th chapter, text 21, where the demigods are praising the glories of Bharatvarsha. भारतवर्ष के विषय में बता रहे हैं देवता लोग, येर जन्म लब्धा नरसु भरता जिग्रे मुकुंद सेव्योपैकम सुप्रहान ही नहा, कि ये जो मनुष्य जन्म है, देवता लोग स्वर्ग में बहुत बरस तक, उसमें से मतलब एक देवता ये विदुर भी है, यमराज के अवतार, डेमी गॉड है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यमराज देव को। तो विदुर भी इस मने भजन में सम्मिलित है देवलोक में, कि वो देवता लोग के कल्प आयु में बहुत लंबी आयु होती है उसकी, हजारों हजार बरस। So here in the 5th canto it mentions that the devatas or the demigods, their lifespan is very, very long. But when they are offering prayers, and actually Vidura is also one of the devatas in that sense that he is the Yamaraj, so he is also one of the demigods. तो इस प्रकार से आज विदुर जी माने यमराज थे, स्वयं विदुर के रूप में है, और भारत के महिमा के विषय में वो पहले गा चुके हैं कि भारत क्या है। तो भारतवर्ष का उन्होंने अपने चरण से चलते हुए प्रभास क्षेत्र में आया, प्रभास क्षेत्र में उनको आगे सब समाचार अपने बंधु बांधव के विषय में प्राप्त होगा, विशेषतया भगवान श्री कृष्ण के विषय में। So we will see further in Prabhas Kshetra how he will get the news of his relatives and especially about Lord Krishna. लेकिन विदुर जी का विशेषतया ये जो उदाहरण प्रस्तुत है हम सब के जीवन में लागू होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेषतया संभवतः हो सके तो धाम में रहना चाहिए,
श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि विशेषतया मैं वृंदावन धाम में या मायापुर धाम में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय भक्त हैं उनके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन के निर्माण करता हूँ कि भविष्य में वो लोग आकर के यहाँ पर रहे और अपना भजन कीर्तन करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। Especially the instructions of Vidura is that one should live in the dham or the holy places, and you can see that Prabhupada has established all these different temples throughout India, and especially in the holy places wherein the devotees of the society can come and do their bhajan and go back to Vrindavan. इस भारतवर्ष का जो महिमा है वास्तविक में अनंत अपार है, थोड़े समय में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे विश्व के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारत पर वो आक्रमण करने के लिए नहीं आया, लेकिन भारत किसी की ओर आक्रमण करने के लिए नहीं गया। There are so many glories about India, or one can talk about Bharatavarsha. It's not enough time, but we can see that there are so many invaders. They came and invaded India, but India never went and invaded any other country. श्रील प्रभुपाद जी भी जब भारत से अमेरिका आए, अमेरिका इंग्लैंड जो भी, तो यहाँ के जो लोग उसी समय भारत आज़ाद हुआ था। अब प्रभुपाद जी ने पूछे कि आप अभी यहाँ क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा बेटा मैं इसलिए आया हूँ कि तेरे बाप दादा जो है वहाँ से हीरे मणि माने के लिए आया, लेकिन मैं तुम्हें जो अमूल्य रत्न है वो वहीं भूल गया, वही मैं तुमको देने आया हूँ, मतलब भगवत गीता। So when Prabhupada was traveling, this was after the independence of India, especially in England, he was asked, oh, why have you come here? And Prabhupada said that your forefathers, they came and looted India and they took so many jewels, but they forgot one jewel, that is Bhagavad Gita, and I have come to give that jewel to you. क्योंकि भारत के जैसे कि भारत को महिमा उनको गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, है ना। So Bharat was also referred to as Sone ki chidiya. Sona is gold, so golden bird. जय श्री पंचतत्व देव की जय, श्री जगन्नाथ देव महाराज की जय। तो भारत का महिमा यहाँ पर विदुर जी भारत भगवान कृष्ण में गीता में बार बार कहती है, हे भारत, हे पार्थ, भारत। तो भारत जो है हमारा बहुत पुण्य शक्तिशाली, मतलब हर विषय में धन धान्य से संपूर्ण, नहीं धन धान्य से संपूर्ण मैंने कहा, शक्तिशाली बताया हमें तुम्हें। India is referred, or Bharatavarsha is mentioned that it was complete with all the facilities, including the material facilities. आध्यात्मिक also, पहला आध्यात्मिक है, फिर भौतिकता है। Of course, spiritual wealth, but also it possesses material wealth too. कि भारत में विशेषतया विदुर जी का जो ये भ्रमण है भारतवर्ष का समस्त तीर्थों का, तो हम सब के लिए ये एक ज्ञान का स्रोत, मतलब विदुर जी बता रहे हैं कि आप लोग भी इस तरह से जो है भगवान के सानिध्य में रह करके अपना जीवन यापन करें। So here the instruction of Vidura is that one should associate with the devotees of the Lord and practice the bhakti yoga. विशेषतया चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बताया कि भारत भूमि पे होइले मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप जो भारत में जन्म लिए हो, आप सब भारतवासी बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन आपका जन्म जो है सार्थक जब होगा, इस ज्ञान को सीख करके जान करके आप दूसरे को बताओ, तब आपका सार्थक माना जाएगा। Just like Chaitanya Mahaprabhu mentions in Chaitanya Charitamrita, Bharata Bhumite Hoile Manushya Janmaja, that whoever has taken the birth in this tract of land known as Bharatavarsha or India,
Janma Sataka Kari Karo Upkara. They should perform this Para Upkara. Upkara is जार देखो तार को कृष्ण कथा। Upkara. उपकार मतलब वही है, मतलब भगवान के विषय में कहिए आप तो वही उपकार है। सोचने लगा I'm भगवान not getting the right word, but I think most of us we know this verse. That one who has taken birth in the land of Bharat or India, they should render service to the whole humanity by preaching the glories of the Lord. तो विदुर जी सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो सब स्वयं यमराज होते हुए वो सभी यम दंड इत्यादि के विषय में जानते हैं कि संसार के चक्र में फंस करके लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या में, मोह में हमारा पतन होगा। सबसे बड़ी बात है कि सबको त्याग देना चाहिए। जैसे महाराज श्री कल के अवधूत धरी अवधूत वेश धारण करके और भगवान के कीर्तन कथा सुनने के लिए निकल पड़े, जहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। हमारा एक भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, छड़िया बैराग देह सुख छाड़ी, नाना लाता तरुतले, कभी बोले हा राधे हा कृष्णा। This is one bhajan by Narottam Das Thakur. In similar fashion, Vidura, he left all the opulences and left home, and he was wandering just like a mendicant, just like an avadhuti. तो ये सब चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये सिखाया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भक्त अवतार में पूरे भारतवर्ष का जो तीर्थ है उनका भी उन्होंने जो है दर्शन किए। भगवान होते हुए मनुष्य लीला में सबको भगवान को प्रचार प्रसार करना, दिखाना, स्वयं भगवान मतलब दिखाया कि व्यक्ति के जीवन में वैराग होना चाहिए। अब वैराग मतलब घर गृहस्थी के काम से जो है मतलब निवृत्त हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। Even Sri Chaitanya Mahaprabhu has set up the example, and you can see that how he traveled throughout India when he went on pilgrimage and preached, or Bhakta Avatar is the emblem of a devotee, or he is preaching how one should be a devotee. आज भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद जी ने लोकनाथ महाराज को शिक्षा दिए थे कि आप जो है पद यात्रा निकालो, मतलब पद यात्रा करो, गांव गांव। महाप्रभु जी ने कहा नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। एक दिन पूरे विश्व भर में मेरे नाम का प्रचार होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Prabhupada instructed Loknath Swami to do padayatra, to travel in each and every village, just like Mahaprabhu says that Kutvidache Nagaradigram Sarvatra Prachar Hoibe Moranam, that in every town and village my name will be glorified. तो ये पद यात्रा द्वारका से 1984 में चालू हुआ था। अब ये पद यात्रा भारतवर्ष में ऐसे लोकनाथ महाराज ने 108 देशों में 96 तक पूरा कर लिया था ज़्यादा, लेकिन वो भारत की जो पद यात्रा है वो आज तक चल रही है कंटिन्यू पूरे भारतवर्ष में। जितने भी तीर्थ है एक बार मैंने पूरे धाम चारों भारतवर्ष की परिक्रमा करने में 4 साल लगता है। So Maharaj, Loknath Maharaj has started this parikrama, the Padayatra, in 1984, and they have gone through all the holy places, and to go all the holy places throughout India it takes 4 years. Padayatra, so walking on foot. मैंने एक परिक्रमा करने के लिए 4 साल लगता है, तो वो 84 से चल रहा है, तो कितने बार हो गए? So to do one parikrama it takes 4 years, and they have been continuously doing it since 1984. तो जब हम जैसे विदुर जी ने पद यात्रा किया पूरे तीर्थों का, तो इसी प्रकार से आज हमारे इस प्रभुपाद जी के संस्था गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय के द्वारा चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में समस्त तीर्थों के यात्रा आज भी हम कर सकते हैं पद यात्रा के माध्यम से। So Prabhupada has established beautiful temples in all these holy places, and if we ever get opportunity, one should go travel or go on pilgrimage to all these beautiful holy places in India. और नगर नगर गांव गांव में जाकर के भगवान नाम का कीर्तन करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग का जो हम सब जीव है, उन सब का युग धर्म यही है, भगवान नाम का कीर्तन, दूसरा और कुछ नहीं। जो जहाँ है, जिस स्थान में है, वहीं पर रह करके भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे तो उनको समस्त तीर्थ का और व्रत का फल मिल जाएगा। So in Kali Yuga, the only recommended process is chanting of the holy names of the Lord. Doesn't matter wherever they are, sthana, wherever they are, they can follow this process and get the same benefit of traveling to all the holy places. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को कोई जिज्ञासा, क्वेश्चन? So any questions or comments? I just had a comment when you were saying about how the British stole so much from India. Al Jazeera, it's a journalistic thing. They did an article about that actually on Facebook, and they were saying it's estimated to something like 45 trillion that the British plundered from India, and even lied about it too. So it's a interesting thing. Yes, they are very valuable things they took from India. कोहिनूर था ना भगवान का, अभी भी लंदन में रखा हुआ है कोहिनूर। Yeah, there's a mention of the Kohinoor, this diamond, very valuable diamond, Kohinoor, and it's still there in the museum in London. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।